Good morning, dear student. How are you? I hope you all are well and taking good care of your health as well as your studies. Today we are going to start our next part of our topic rational and irrational number. Today we will learn in this decimal representation of rational number. Okay, see decimal representation of rational number. Now, what do you mean by this? The decimal representation of a rational number is obtained by dividing its numerator by the denominator. Means when we divide numerator by its denominator, the answer which we get is nothing but your decimal form. How? Suppose if 14 is here and I am going to divide this 14 by 3. Now what I will get here? 14 divided by 3. I think 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 will be greater. So 3 4s are 12. Now subtract what you will get here? 2. Division is further not possible to put here decimal and write here 0. So it will become 20. Now 3 6 are 18. Subtract 2, it will come to, again you will write here 0. Once again it will become 20. 3 6 are 18. Now the answer you got here is 4.66666. It will come continuously. So your answer will be here 4.6666. This will be continue. Okay, so here the answer is expressed in the form of decimal. So this is a decimal representation of rational number. कि आप रेशनल नंबर को किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर हम किसी भी नंबर को न्यूमरेटर को उसके डिनोमिनेटर से अगर डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो डेसिमल फॉर्म में आ सकता है। जरूरी नहीं है डेसिमल के बाद पॉइंट जीरो होकर भी खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आएगा 5 5 सा 25। नाउ इस गेट्स एंड हियर। आप पॉइंट के बाद जीरो लगा दोगे फिर भी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम कभी भी जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से अगर डिवाइड करते हैं तो जो आंसर हमारा डेसिमल फॉर्म में आता है हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। In that, your first part will be terminating decimal and second will be non-terminating decimal. ठीक है, ये जो डेसिमल हमने पढ़ा हम उसको दो पार्ट में बता सकते हैं जो उसके टाइप्स है। एंड द फर्स्ट टाइप्स इज टर्मिनेटिंग and second part is non-terminating, sorry, types. Now let us understand in detail what is terminating decimal. Terminating decimal क्या होता है? Terminating decimal वो डेसिमल पॉइंट होते जो एक निश्चित पॉइंट के बाद एंड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख करके दिया है 11 divided by 2. If I am going to divide 11 by 2, so how much I will get my answer here? 2 5s are 10. My remainder will be here 1. Now further division not possible. What I will do here? I will put here decimal and will carry here 0. ठीक है, now 2 5s are 10. तो here your remainder will be 0. तो आपका डिवीजन यहाँ पे क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके रिमाइंडर में यहाँ पे 0 आया। चलो इसको भी हम देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल है 14 अपॉन 2। नाउ यू विल डिवाइड 14 बाय 2। आई थिंक 2 7 जा 14। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो यू विल गेट हियर 0 एज अ रिमाइंडर। रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा? 0। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो 17 को आपको 5 से डिवाइड करना है। नाउ आई थिंक 5 3 जा 15 and your remainder will be here 7 minus 5 2।
Now further division is not possible, so what you will do here? You will put here decimal and will carry over here 0. I think 5 4s are 20. After subtracting, you will get here remainder 0. Okay, in all this example, your remainder is 0. Okay, so this kinds of decimal, for example, 5.5, 3.4 will be known as terminating decimal. Why? Because further division is not possible. It ends here. ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसके आगे डिवीजन नहीं पॉसिबल है। तो इस तरह के जो डेसिमल होंगे हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि मैंने बोर्ड पे लिख के दिया है। Terminating decimals are those numbers which come to end after few repetition after decimal point. Decimal point के बाद कुछ नंबर रिपीट हो सकते हैं, जैसे 5 आया, 4 आया, 3 हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, and remainder is 0. You can see in all the example the remainder is 0. ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो फाइनली 0 ही आएगा। Hence the process of division and division पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप इसके आगे आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। Here also division is fully completed. You cannot do further this. Similarly in this example 5.5 will be your final answer. Further you cannot do it. आप इसके आगे नहीं कर सकते हो। तो all these kinds of decimal is known as terminating decimal. Now this was all about terminating decimal. Now here one more types of decimal is here, non-terminating decimal. Now in that there is also two type. इसके अंदर भी दो टाइप है। First one is recurring or repeating. Both are same. दोनों सेम है। आप चाहे इसे recurring बोलो या repeating बोलो। And second one is non-recurring or non-repeating. ठीक है, जो recurring और repeating हम जिसे कहते हैं ये मोस्टली रेशनल नंबर्स होते हैं जो कि हम इसमें सीखने वाले हैं। एंड non-recurring और non-repeating ये मोस्टली इरेशनल नंबर के लिए होता है, जैसे √2, √3, √5 जो हम इस एक्सरसाइज के बाद सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये सीखेंगे रिकरिंग और रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने एग्जांपल दिया है 10/3 मींस हियर योर न्यूमरेटर इज 10, योर डिनोमिनेटर इज 3। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपको क्या आंसर मिलेगा? आपको 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 3 9, रिमाइंडर विल बी 1। अब क्या डिवीजन पॉसिबल है? नहीं, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 कैरी करेंगे। देखिए 3 3 9, अरे फिर से 1 आ गया यहाँ पर, फिर से देखो डेसिमल हम लगाए तो यहाँ पे फिर से 0 कैरी कर सकते हैं। अगेन आई विल गेट हियर 3 3 9। तो क्या ये डिवीजन कभी एंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये जो पॉइंट 3 3 3 3 कंटिन्यूसली आते रहेंगे, ये कभी भी सॉल्व नहीं होंगे। तो आपका आंसर होगा 3.3। और देखिए अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, तो बार भी लगा सकते हैं क्योंकि सिंगल डिजिट है। ठीक है, तो इस तरह के जो डेसिमल रहेंगे उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, साथ साथ में ये रिकरिंग भी है। रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो, क्योंकि वो बार बार अभी यही नंबर रिपीट होते रहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज 18/42 जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, 18/42 को मुझे डिवाइड करना है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आप ये काफी बड़ा हो जाएगा अगर, क्योंकि 42 का टेबल आपके लिए काफी बड़ा हो सकता है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। मुझे क्यों लगता है कि ये 18 और 42 दोनों 6 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूं, इसको डिवाइडेड बाय 6 करता हूं, इसको भी डिवाइडेड बाय 6 करता हूं। तो 6 3 18, यहाँ पे 6 7 42। तो अब देखिए ये मतलब जो फ्रैक्शन आया ये काफी छोटा हो गया।
चाहे आप इसे डिवाइड करके लिखिए, चाहे आप इसे डिवाइड करके लिखिए, लेकिन दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूं, तो इसे मैं किस तरह से लिख सकता हूं, 3 को 7 से डिवाइड करना है। यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे, एंड वी कैन कैरी हियर 0। तो ये कितना हो गया, 30। नाउ 7 4 28, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अगेन यू कैन कैरी हियर 0 बिकॉज यू पुट हियर डेसिमल, डेसिमल आपने लगा लिया है पहले से। अभी कितने बार जाएगा, 7 2 14, so your remainder will be here 6. Now again you can carry here 0. Now it becomes 60. 7 5 are 35, 7 6 are 42, 7 8 are 56. So 7 8 are 56. Now subtract, you will get here 4. Now do one thing, carry here 0. 7 5s are 35. Now your remainder will be here 5. Now 7 7s are 49. 1. Now you can carry here 0. Fit 7 1s are 7. Now finally how much you got here, 3. ओके, अगेन देखो यहाँ पे 3, यहाँ भी 3। अगर मैं यहाँ पे 0 कैरी करता हूं तो ये सारे प्रोसेस क्या होंगे, वापस से रिपीटेड होंगे। तो इसका मतलब 4 2 8 5 7 1, फिर से 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7, ये कंटिन्यू आते रहेंगे। तो इसका आंसर आएगा 18/42 को, या आप इसको 3/7 भी बोल सकते हो, का आंसर कितना आएगा, 0.428571। और यही नंबर बार बार रिपीट होंगे तो आप यहाँ पे बार लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो जिस तरह से ये दोनों एक ही तरीके से हुआ। फर्क इतना है कि यहाँ पे सिंगल डिजिट था और यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजिट है। तो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहोगे तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो कि 10/3 है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। देखिए रिकरिंग क्यों लिखा, क्योंकि ये बार बार रिकरिंग होते रहेंगे। सिमिलरली आप इसका भी आंसर लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो आप इसके जस्ट नीचे कि 18/42 है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। form. Here also you can write form. Okay, now about this non-terminating decimal form, in that second part non-recurring or non-repeating we will learn later after this exercise. Okay, so I hope you understand this video, and for your homework, your exercise 1.3 will be your homework, and you have to solve exercise 1.2 similarly as we have done our example number 1 and our example number 2. तो मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आता तो आप 1-2 बार देख सकते हैं वीडियो को, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बावजूद अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।